So good morning to all of you, and let's just continue our lecture that so dear students, welcome back in the Balarao Science College Savner online classes for BSc semester 1. Myself Mr. C.T. Potode, Assistant Professor, Department of Botany, Balarao Science College Savner. So dear students, in previous lecture we have started the topic which is the part of semester 1, that is the paper 2, semester 1 paper 2. Okay. So here we are going to discuss the semester 1 paper 2 and having the name fungi, plant pathology, lichens, dry phyta and mushroom cultivation. In this lecture we will going to discuss the general characters of the fungi. In next week we will going to discuss that the part of classification of fungi and the economic importance of fungi. As a part of your theory examination of the semester 1, most probably in the December, ठीक है, आपकी examination December में आ सकती है. The schedule may be displayed on the RTMNU site. RTMNU site पे display हो सकती है. So be prepared for that examination. And in yesterday's meeting of our botany department, it was decided that you have to provide some practical related information and you have to make a practical record. आप लोगों को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी. साथ ही में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि जो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करने पड़ते, वो आपको लिखने पड़ेंगे. जल्दी आप लोगों का एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ जाएगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड बी सीरियस अबाउट द लेक्चर्स. अभी भी हमारे लेक्चर में सिर्फ 16-18 ही स्टूडेंट्स अटेंड हो पा रहे हैं. ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स दे जस्ट ज्वाइन द ग्रुप बट दे डजंट ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस एनीवेज. सो हियर वी विल कंटिन्यू. यहाँ पे अभी हम लोग जैसे हम लोग बहुत दिनों से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, देन later on we will take a part of nutrition of fungi, then the part of reproduction of fungi, and after these two lectures we will just move towards the next topic, that is the classification of fungi and the economic importance of fungi. हम लोग क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में. सो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे भी ये पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं आज और कल के लेक्चर में. So dear students, we are going to discuss the semester 1 paper 2, and semester 1 paper 2 consists of the general characters of fungi. हम लोगों ने इसमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स यानी नियर अबाउट 14 to 15 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए थे. फिर भी हम लोग एक रिवीजन कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे. थोड़ा फास्ट लेंगे. फंजाई आर यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मींस विल डेवलप न्यूक्लियस. नॉन क्लोरोफिलस, इट शोज द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. And heterotrophic organisms means the organisms which depend upon another organism for getting the food material, and it cannot synthesize their own food material. The fungal cell do not contain the chlorophyll or other photosynthetic pigment. Fungal cell जो होती है इसके पास में कोई भी chlorophyll pigment नहीं होता है और कोई भी photosynthetic pigment नहीं होता है. ये पेज मैंने आप लोगों को दिया था ग्रुप पे. ठीक है, आप लोगों ने रखना है इसे, या फिर इससे रिलेटेड अगर कोई नोट्स आपके पास में होते हैं तो यू शुड हैव टू कैरी फॉर योर थियरी एग्जामिनेशन. The vegetative body composed of the interwoven mass of thin tubular cylindrical branch hyphae called as a mycelium. Mycelium को हम लोगों ने क्या कहा था? The body of fungi. जो body of fungi होती है, which is made up of the interwoven mass of structure. Interwoven means the network-like structure. The network-like structure of the thin filaments of the filamentous structure, which is highly delicate in nature, and this network-like structure is called as a mycelium. The hyphae in case of mycelium may be septate or non-septate. What is meant by hyphae? The single filament of mycelium. Mycelium का जो single filament होता है उसे हम लोग hyphae कहते हैं. This hyphae may be septate or aseptate. Aseptate hyphae is also called as a non-septate hyphae. And aseptate multinucleate hyphae is called as a sinocytic hyphae. इसे हम लोग sinocytic hyphae कहते हैं.
Each fungal cell contain the definite nucleus, hence they show the eukaryotic cellular organization. हर एक फंगल सेल के पास में एक डेफिनाइट न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, इसलिए उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. द हाइफी में भी यूनि और मल्टी न्यूक्लिएट, जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया कि हाइफी जो होती है फंजाई के केस में वो यूनिन्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट होती है. देन द हाइफी आर ऑलवेज यूनिसेरिएट, then biseriate, triseriate और the multiseriate. Means seriate means the branching. ठीक है, ब्रांचिंग जो होती है तो यूनिसेरिएट सिंगल फिलामेंट होता है, बायसेरिएट उसको दो फ्रैगमेंट्स रहेंगे, ट्राई और मल्टीसेरिएट. The nuclear envelope does not break down during the mitosis or meiosis. Means at the time of cell division in case of the fungi. fungi के केस में जो सेल डिवीजन होता है तो वहाँ पे माइटोसिस या फिर मियोसिस जब होता है तो वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन नहीं होती है. The reserve food material is always in the form of glycogen, fat and the oil. Reserve food material जो होता है वो प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन, फैट या फिर ऑयल के फॉर्म में. The starch is absent in case of the fungi. fungi के केस में starch absent होता है. The cell wall contain the fungal cellulose or chitin. The cell wall of fungi, it is made up of the fungal cellulose or it is also called as the chitin. Both, but pure cellulose is totally absent. Means the cellulose is absent in case of the kingdom fungi. The cell cytoplasm contains the cell organelles and inclusions. The fungal cell organelles includes the endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, vesicles, microtubules, etc. जो एक सेल होती है फंगल सेल, उस फंगल सेल में सभी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज में मतलब कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वेसिकल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सभी कंटेंट सीपी या फिर ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज जो रहेंगे, ऑल दिस सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द फंगल सेल. Then DNA acts as a genetic material. फंजाई के केस में डीएनए ये होता है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. The mode of nutrition is mostly by absorption and rarely by ingestion. ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि that fungi it shows the absorptive mode of nutrition. ये absorptive mode of nutrition शो करता है, right? And ingestion is rarely found in case of the fungi. Ingestion मतलब consumption. ठीक है, consumption with the help of mouth. माउथ की हेल्प से अगर कंजम्पशन होता है तो उसे इंजेक्शन कहा जाएगा. लेकिन फंजाई जो होती है उसके फिलामेंट्स की हेल्प से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करती है. दैट्स व्हाई इट शोज द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दिस एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द सैप्रोफिटिक एब्जॉर्प्शन. ठीक है, उसे हम सैप्रोफिटिक एब्जॉर्प्शन कहते हैं. दे में भी पैरासिटिक, फंजाई जो होती है वो पैरासिटिक होती है. हाइपर पैरासिटिक का मीनिंग मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था आप लोगों को. द पैरासाइट्स विच डिपेंड अपॉन अनदर पैरासाइट इज कॉल्ड एज हाइपर पैरासाइट. ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था हाइपर पैरासाइट के केस में. सो द फंजाई में बी पैरासिटिक, हाइपर पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Then symbiotic means the two different partners or the two different organisms living in association. It is called as a symbiotic condition. They represents the zygotic life cycle. ठीक है, वो zygotic life cycle show करते हैं. Then they grow at the minimum 2 to 5 degrees centigrade, optimum at 22 to 27 degrees centigrade, and maximum at 35 to 40 degrees centigrade temperature. फंजाई जो होते हैं वो ग्रो होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे. 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है यहाँ पे, 22 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम एट 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. मोस्ट ऑफ द फंजाई प्रेफर द एसिडिक मीडियम with the optimum pH 5 to 6.5 for the normal growth. यानी ज्यादातर फंजाई जो होती है उनको एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है. द एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर the optimum growth. ठीक है, and this acidic medium it shows the pH in between the 5 to 6.5. ठीक है, pH जो होता है वो 5 to 6.5 के बीच में होता है. Few grow below the pH 3 and some above pH 9. They reproduce by the sexual and the asexual method of reproduction. फंजाई जो होते हैं वो दोनों मेथड फॉलो करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज द सेक्सुअल मेथड ऑफ reproduction.
Then the spores and gametes may be flagellated, motile, or non-flagellated, that is non-motile. Asexual reproduction takes place by fragmentation, fission, budding and spore formation. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई के केस में वो फ्रेगमेंटेशन से होता है. फ्रेगमेंटेशन मतलब एक अगर सिंगल फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट अगर टूट जाता है तो सिंगल फिलामेंट के कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए. ठीक है, तो जो 2 टुकड़े होंगे वो दोनों टुकड़े न्यू इंडिविजुअल करके काम करेंगे. ठीक है, so it is a case of the fragmentation. Next to the fragmentation there is a presence of fission, then budding and spore formation. It is a part of asexual reproduction in case of the fungi. Then the spores and gametes may be flagellated. Flagellated means it shows the presence of flagella for the movement, that is the motile fungi, and non-flagellated, absence of flagella, that is a non-motile condition. Sexual reproduction involves the fusion of compatible nuclei. Sexual reproduction जो होता है ये क्या इन्वॉल्व करता है? Fusion of compatible nuclei. It involves the plasmogamy, karyogamy and meiosis. Sexual reproduction जो होता है वो अलग-अलग methods इन्वॉल्व करता है, like the plasmogamy, karyogamy and the meiosis. Meiosis it is a part of cell division. Some fungi show the symbiotic relationship with the 80% vascular plants called as the mutualism. Now what is this mutualism? Mutualism in case of fungi. Fungi के केस में जो mutualism होता है तो उसे कहा जाता है symbiotic association. यानी फंजाई जो होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है 80% वस्कुलर प्लांट्स. वस्कुलर प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट रहेंगे? सभी हायर प्लांट्स रहेंगे. ठीक है, ऑल द हायर प्लांट्स, जितने भी हायर प्लांट्स रहेंगे उन सभी हायर प्लांट्स के साथ फंजाई क्लोज एसोसिएशन शो करेगा और इस कंडीशन को इन लोगों ने नाम दिया है म्यूचुअलिज्म. Now come to the vegetative structure of fungi. In case of the Myxomycota, that is, it is one of the category of fungi. In case of Myxomycota, the thallus is naked amoeboid mass of protoplasm. Myxomycota मतलब फंजाई के केस में थैलस जो होता है वो नेकेड होता है, उसमें कोई कवरिंग नहीं होती है. ठीक है, amoeboid mass of protoplasm. It may consist of single large multinucleate protoplasm called as a plasmodium, or it may be an aggregation of the many small uninucleate protoplasm that retains their individuality called as the pseudoplasmodium. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि मिक्सोमाइकोटा मतलब फंजाई के केस में एक नेकेड अमीबॉइड मास मतलब फॉर एग्जांपल दिस सर्कुलर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा एक सर्कुलर सेल जैसी स्ट्रक्चर होती है. इट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडियम. ठीक है, इसको सिंपली इन्होंने क्या कहा है? प्लाज्मोडियम. This plasmodium, it may be a aggregation of many uninucleate protoplasm that retains their individuality called as a pseudoplasmodium. In Eumycota, vegetative body consists of the network of branch filaments called as hyphae. देखो यहाँ पे हाइफी कैसे डेवलप होती है? सबसे पहले स्पोर्स है, देन स्पोर्स इट प्रोड्यूस अ जर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एक ट्यूब बनी है वहाँ पे, जैसे हम लोगों को पता है कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स जैसे ही किसी फेवरेबल कंडीशन में अगर न्यूट्रिएंट उससे मिलता है तो वो ट्यूब बनाना शुरू करते हैं, पोलन ट्यूब. उसी तरह यहाँ पे स्पोर्स ने यहाँ पे जर्म ट्यूब बनाई है, एक सिंगल ट्यूब बनाई है, उससे बहुत सारे इन्होंने फ्रैगमेंट्स बना दिए. जर्मिनेटिंग स्पोर्स इट प्रोड्यूस द मेनी फ्रैगमेंट्स and these fragments or filaments are called as the hypha. इसे hypha कहा है. ऐसी बहुत सारी hyphae अगर बन जाएंगी, so the network like structure will be produced and this network like structure is called as the mycelium. इसे हम लोग कहेंगे mycelium. Now take just look regarding this hypha. Now what is this hypha? hypha के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को. The body of fungi it is made up of the highly delicate thin filamentous structure or the network-like structure of filament, and this network-like structure of filament is called as the mycelium. इस mycelium में से अगर हम लोग single filament निकालते हैं, that single filament is called as a hypha. Single filament को हम क्या कहेंगे? Hypha. The fungal filament is called as a hypha, and plural name it is that is a hyphae. ठीक है, hypha it is a singular. ठीक है, एक सिंगल अगर फिलामेंट होता है तो उसे हाइफा कहेंगे, और एक से ज्यादा फिलामेंट अगर होते हैं तो उसे हम लोग हाइफी कहेंगे. राइट.
It is formed by the germination of fungal spores on a suitable substratum. ठीक है, यानी हाइफी जो प्रोड्यूस होती है, इट इज फॉर्म बाय द जर्मिनेशन ऑफ फंगल स्पोर्स ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हाइफी जो बनती है फिर एक सिंगल फिलामेंट जो बनता है वो किसके हेल्प से बनता है, स्पोर्स की हेल्प से। द स्पोर्स दे गेट जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और उसमें से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इट ग्रोज टू डेवलप द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो आगे ग्रो होता है और एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और उस धागे जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हाइफी। So this hyphae it is formed by the germination of fungal spore on the suitable substratum. Suitable substratum मतलब कोई फूड मटेरियल अगर है, उस फूड मटेरियल पे स्पोर्स अगर आते हैं फंजाई के, ठीक है। अभी आप लोगों ने वूल के कपड़े निकाले होंगे आप लोगों के रखे हुए, ठीक है। तो कुछ ऐसे कपड़े होंगे कि जिन पे आप लोगों को फंगल स्पोर्स दिखाए गए होंगे, तो आप लोगों ने उसको ड्राई किया होगा, ठीक है। ड्राई करने के बाद दैट फंगल स्पोर्स दे गेट रिमूव्ड, ठीक है। अगर विदाउट ड्राइंग दैट क्लॉथ्स, ठीक है, जो क्लॉथ्स थे वूल क्लॉथ्स, ठीक है, वूलन क्लॉथ जो थे आपके विदाउट ड्राई किया आप लोगों ने अगर यूज किए, दैट फंगल स्पोर्स में स्प्रेड इनटू योर फोम और फाइनली इट मे कैन एंटर इन योर बॉडी, ठीक है। वो स्पोर्स आपके बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं। हम लोग नजरअंदाज करते हैं उनको, ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, बट इट इज इन्फेक्शियस एंड डेंजरस समटाइम्स। सो इन फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है इस स्पोर्स को, इन फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, द फंगल स्पोर जर्मिनेट्स बाय द मींस ऑफ वन और मोर ट्यूब लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड एज द जर्म ट्यूब। ये जो स्पोर रहेगा, उस स्पोर को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मतलब कौन सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताई है इन लोगों ने, द मॉइस्चर, यानी थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा, गीली रहेंगी एटमॉस्फेयर, पानी रहेगा थोड़ा उसमें एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर, देन ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। जैसे कि दिस कंडीशन, विंटर कंडीशन, इट इज वेरी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई। फंजाई के ग्रोथ के लिए रेनी एंड विंटर सीजन इट इज वेरी फेवरेबल। So in this favorable condition, it produces a germ tube. Each germ tube elongates to form the hyphae. ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्पोर्स है, स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिली तो उसमें से जर्म ट्यूब निकली, और उस जर्म ट्यूब को जर्म ट्यूब जैसे ही ग्रो हुई तो उसमें से फिलामेंट्स निकले, एंड दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज द हाइफी। इन फिलामेंट्स को कहेंगे हाइफी। Then each hypha is tubular, long, fine, cylindrical and branch structure. हर एक हाइफी जो रहेंगी वो इलोंगेटेड रहेंगी, देन सिलेंड्रिकल रहेंगी, लॉन्ग रहेंगी, फाइन रहेंगी, समटाइम इट शोज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, then it may either uninucleate or multinucleate. Many hyphae aggregates to form the mycelium. देखो यहाँ पे इन्होंने फाइनली mycelium को बता दिया कि mycelium कैसे बनता है। बहुत सारे हाइफी एक जगह पे अगर जमा हो जाती है, नेटवर्क स्ट्रक्चर अगर बना लेती है, so this the collection of many hyphae, it produce the network like structure and it is called as a mycelium। ठीक है, तो ये mycelium और हाइफी हम लोग बहुत दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, and this mycelium it is the body of fungi। ये body of fungi होता है। So next point, it is absorptive in function। ये mycelium जो होता है वो absorptive in function होता है। So this is the figure which shows the germinating fungal spore। यहाँ पे fungal spore था, वो germinate हुआ, उससे filaments बने, और इन सभी filaments को नाम दिया है hyphae। और हाइफी अगर बहुत सारे फिलामेंट्स बना लेती है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसे हम लोग कहते हैं माइसेलियम। वी विल कॉल इट एज अ माइसेलियम। नाउ द टाइप्स ऑफ हाइफी, हाइफी के टाइप्स देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइफी और टू काइंड्स ऑफ हाइफी, दैट इज अ नॉन सेप्टेड हाइफी एंड अ सेप्टेड हाइफी। नॉन सेप्टेड हाइफी, हाइफी लैकिंग द सेप्टा, कॉल्ड एज अ नॉन सेप्टेड और द सिनोसिटिक हाइफी। नॉन सेप्टेड हाइफी जो होती है, that hyphae which does not consist of the septa or branch, जिस hyphae के पास में septa या फिर branch नहीं होती है, उन्हें हम लोग नॉन सेप्टेड हाइफी कहते हैं, या फिर उस हाइफी को हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। बेसिकली सिनोसिटिक हाइफी कौन सी हाइफी होती है, द हाइफी which is aseptate and multinucleate। The aseptate and multinucleate hyphae is called as a सिनोसिटिक हाइफी, उसे सिनोसिटिक हाइफी कहा जाता है।
The fungus represents as one tubular long branch cylindrical tube. During this mitosis, division of nuclei, that is a karyokinesis, occurs, but there is a no division of cytoplasm, that is cytokinesis. यानी जब ये नॉन सेप्टेड हाइपी जो होती है वो माइटोसिस शो करती है, सेल डिवीजन शो करती है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज ऑकर्स, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बट देर इज अ नो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। जैसे सेल होती है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, and a formation of cross walls. Hence, they remains unicellular and multinucleate. Then the members of lower fungi have the non-septate hyphae, for example, the mucor, albugo, rhizopus, etc. यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लोअर फंजाई जो होती है, मेंबर्स ऑफ लोअर फंजाई हैव नॉन सेप्टेट हाइपी, इनके पास में नॉन सेप्टेट हाइपी होती है, ठीक है। इसके बाद में इसका मतलब इनके पास में सिर्फ सिंगल फिलामेंट्स ही होते हैं, ब्रांच फिलामेंट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया है म्यूकर, ठीक है, कि जो आपके घर में ब्रेड पे वगैरह या फिर फूड मटेरियल पे ग्रो होता है म्यूकर। उसके बाद में अल्ब्यूगो एंड राइजोपस, इनमें से हमें दो स्पीसीज के बारे में थियरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है, दैट इज म्यूकर एंड अल्ब्यूगो। Now the septate hyphae, the hyphae having the cross walls or the septa are called as septate hyphae. जिस hyphae के पास में क्रॉस वॉल्स होती है या फिर सेप्टा होता है तो उसे हम लोग सेप्टेट hyphae कहते हैं, ठीक है। The septa divides the hypha into the two cells, ठीक है, सेप्टा जो होता है वो डिवाइड्स करता है hypha into the two cells. During the growth of hyphae, its nuclei divide by the mitotic divisions followed by the division of cytoplasm. इन्होंने बताया यहाँ पे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ हाइफी न्यूक्लियर डिवाइड्स बाय माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, नॉन सेप्टेड हाइफी की केस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, और सेप्टेड हाइफी के केस में यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है, ठीक है। सो इट इज अ केस ऑफ नॉन सेप्टेड एंड सेप्टेड हाइफी. It results to the formation of uninucleate or multinucleate cells. Septate hyphae are found in the higher fungi. Septate hyphae जो होती है वो higher fungi में मिलती है. For example, the Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes और Deuteromycotina. ठीक है, तो ये आपको डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर मिल गए यहाँ पे आपको नॉन सेप्टेट और सेप्टेट में। अभी नॉन सेप्टेट की एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। नॉन सेप्टेट के एग्जांपल देखे थे म्यूकर, अल्ब्यूगो एंड राइजोपस, और सेप्टेट के एग्जांपल देखेंगे पेनिसिलियम, पक्सिनिया एंड सर्कोस्पोरा। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको थियरी में और साथ ही में प्रैक्टिकल में आप लोगों को कुछ फंजाई की स्पीसीज जीनस के बारे में पढ़ना है, जैसे म्यूकर है, अल्ब्यूगो है, उसके बाद में पेनिसिलियम है, पक्सिनिया और सर्कोस्पोरा। इन पांचों जीनस के बारे में आप लोगों को थियरी में भी पढ़ना है, एग्जाम में आपको ये आता है, लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर, लाइफ साइकिल ऑफ अल्ब्यूगो, लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम, लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया एंड लाइफ साइकिल ऑफ सर्कोस्पोरा। इनमें से कोई भी एक या दो जीनस जो होती है वो आप लोगों को थियरी एग्जामिनेशन में रहती है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन माइसिलियम, अभी आप लोगों ने हाइफी के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे माइसिलियम के बारे में। द मास ऑफ इंटरवोवन हाइफी इज कॉल्ड एज अ माइसिलियम, ठीक है। इंटरवोवन, ठीक है, इंटरवोवन मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइसिलियम। So this network-like structure in case of the fungi is called as a mycelium. उसे mycelium कहा जाता है. The mass of interwoven hyphae is called as a mycelium. It represents the vegetative structure and the ecologically active body of the true fungus. ठीक है. So the mycelium it is commonly called as the body of fungi. इसे body of fungi कहा जाता है. It may be inter or intracellular. माइसिलियम जो होता है या फिर ये इंटरसेलुलर होता है या फिर इंट्रासेलुलर। इंटर और इंट्रा मतलब एक तो ये फिलामेंट जो रहेंगे माइसिलियम के वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के
सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, या फिर ये जो फिलामेंट्स रहेंगे उन होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर तक रहेंगे, ठीक है, अंदर तक घुसे हुए रहेंगे, दैट इज द इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर और इंट्रा। इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में, ठीक है, इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में, और इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल। If the mycelia grows in between the host cell, it is called as intercellular। देखो मैंने आपको बताया होस्ट ऑर्गेनिज्म के दो सेल्स के बीच में अगर सिंगल फिलामेंट जाता है फंजाई का, तो इसे इंटरसेलुलर माइसिलियम कहा जाएगा। If it penetrates into the cells of the host and grows inside, it is called as intracellular। अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म के यानी जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर अगर घुस जाते हैं फिलामेंट, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर माइसेलियम, ठीक है, इंट्रा मतलब इनसाइड और इंटर मतलब इन बिटवीन, ठीक है, दो सेल्स के बीच में। द माइसेलियम रिमेन्स इनसाइड द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव, whereas it's some part that grows in and air and produces the spores is called as a reproductive mycelium। देखो इन्होंने बताया कि माइसिलियम दैट रिमेन्स इनसाइड द सबस्ट्रेट, जो माइसिलियम सबस्ट्रेट के अंदर रहते हैं, ठीक है, उन्हें वेजिटेटिव माइसिलियम कहा जाता है। और जो माइसिलियम इट्स सम पार्ट दैट ग्रोज इन एंड आउट, यहाँ पे इन एंड आउट चाहिए था, इन एंड आउट एंड प्रोड्यूसेस द स्पोर्स, इट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव माइसिलियम। देखो फिलामेंट जो रहेगा, फिलामेंट जो रहेंगे फंजाई का, वो फिलामेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर पेनिट्रेट होता है, तो अंदर जो पार्ट रहेगा, सेल के अंदर जो पार्ट रहेगा, दैट इनर साइड पार्ट इट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दैट माइसिलियम, ठीक है, उसे हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे। और होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के बाहर माइसिलियम का जो पार्ट रहेगा कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव माइसिलियम, उसे रिप्रोडक्टिव माइसिलियम कहा जाएगा। Now come to the ultrastructure of fungal cell। fungal cell की हम लोग ultrastructure यहाँ पे देखेंगे। The ultrastructure of fungal cells, figure number 1.5 shows the close similarities with those of eukaryotic cell। इन्हें fungal cell और eukaryotic cell near about same ही आएंगी, ऐसा इन्होंने बताया है यहाँ पे। It is described as under, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सेल दिखाई देंगी, आपको दिखा देता हूँ पहले ही, that you will get the image of ultrastructure of fungi। So this is the ultrastructure of fungal cell, ठीक है, ये fungal cell के ultrastructure है, इसमें क्या क्या मिलेंगे हमें, डिक्टियोसोम्स, ठीक है, as like the ribosomes, ribosomes जैसे होते हैं वैसे डिक्टियोसोम्स है यहाँ पे। then endoplasmic reticulum is there, ठीक है, endoplasmic reticulum, then डिक्टियोसोम्स, lipid body, then it consists of the mitochondria, mitochondria भी मिलेंगी क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगी फंगल सेल के अंदर, cytoplasmic vesicles, then cell wall, then vacuole, then nucleus, then ribosomes, microbody, etc। Now tell me, यहाँ पे अगर सेल वॉल आई है यहाँ पे फंगल सेल की, the cell wall of fungi is made up of which material? आप लोग मैसेज भेजो मुझे चैट बॉक्स में, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, कौन से मटेरियल से बनी रहती है सेल वॉल फंजाई की, भेजिए फटाफट आंसर, देखते कितने लोग आंसर भेजते हैं लोग। अच्छा बाकी लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं फिर क्लास में और एंजॉय कर रहे हैं एकदम क्लास को, ऐसे देख देख के अपने बाल संवारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टाइम पास करेंगे, चाय पियेंगे, और जो क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर नहीं देंगे, राइट। सिर्फ एक दो लोगों ने ही आंसर किया है, यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों ने आंसर किया है, क्यू कॉम बीटीटी संजना भांगे, देन ये D975F EF5 को ने पता नहीं, वैष्णवी सावरकर, इतने लोगों ने ही आंसर किए, ठीक है। एनीवेज तो बाकी लोग के टाइम पास करने के लिए बैठते रहते हैं कि यहाँ पे, सो दैट द करेक्ट आंसर इट इज मेड अप ऑफ द काइटिन, ठीक है, ये काइटिन से बना हुआ रहता है सेल वॉल ऑफ फंजाई।
So the ultra structure of fungi, it is a image of ultra structure of fungi. ये ultra structure of fungi की image है यहाँ पे. तो ये जो points है हम लोग next lecture में discuss करने वाले हैं. तो अभी आप लोगों को जो 2 पेजेस हम लोगों ने आज डिस्कस किए, ये वाला एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का, ठीक है, और दूसरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, ये आपके ग्रुप पे डाल दूंगा मैं. So you take as a reference point of view, and remaining part we will discuss in the next lecture. ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में